अस्सलामुअलैकुम तमाम कैंडिडेट्स को खुशामदीद। आज हम फ़िज़िक्स की एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। पाक नेवी, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनो टाइपिस्ट, स्टोरमैन और असिस्टेंट के हवाले से जो फ़िज़िक्स की एमसीक्यूज़ एकेडमिक पार्ट का अहम पोर्शन होते हैं। और आज इंशाल्लाह ये वीडियो 1 घंटे के करीब होगी और आपके जो फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो तमाम दोस्त जॉब के लिए सीरियस हैं वो ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह। जो नहीं सीरियस वैसे अप्लाई कर दिया है, चलें टेस्ट देंगे तुक्का लग जाएगा, तो वो बेशक अपना देख लें। लेकिन जो सीरियस हैं, जो हासिल करना चाहते हैं जॉब, तो वो इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे तो उनके काफ़ी जो है कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और काफ़ी एमसीक्यूज़ भी उनके दिमाग में बैठ जाएंगे और उनके पेपर में उनकी हेल्प हो सकेगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आपने सुकून से इसको देखना है। 1 घंटे के करीब ये वीडियो होगी तो काफ़ी सारे एमसीक्यू इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा। मैं इस तरह रीड करता रहूँगा, आप साथ साथ इसको सुनते रहिएगा और रिमेंबर करते रहिएगा। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज़, इसका है F/x। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट इट्स मोशन इज़ कॉल्ड, तो इसका मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। The SI unit of spring constant is Newton meter per square. Spring constant Newton meter per square. Next है हमारे पास, formula of for time period of spring mass system is represented by T is equal to 1 over 2 under root m over k. Next है हमारे पास, if the mass of a spring mass system is doubled, its time period is equal to a, इसका correct है, under root 2t. The formula of time period of simple pendulum is T is equal to 2 pi under root L over G. Next है हमारे पास, if the length of a simple pendulum is halved, its time period will become T is equal to T over under root 2. Next है हमारे पास, during simple harmonic motion, acceleration of the body is maximum at extreme position. Next है हमारे पास, the waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves are called as transverse waves की तारीफ है। Next है हमारे पास, waves equation is defined as V is equal to F lambda wave equation है। Next है, if a wave moves in a slingy spring with a frequency of 4 Hz and wavelength of 0.4 meter, the speed of the wave will be 1.6 meter per second. Next है, the product of frequency and wavelength lambda is equal to, तो किसके बराबर है, wave speed। सी ऑप्शन करेक्ट है। Sound waves are examples of longitudinal waves की example है sound waves। The distance between two consecutive compressions or refractions in longitudinal waves is called wavelength. Next, the character by which loud and faint should can be distinguished is called loudness. C correct है। Pitch of a sound depends upon, pitch किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, हाई पिच मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की SI यूनिट क्या है, WM-2। The difference between the loudness of faintest audible sound and loudness of another sound is called quality of sound. B correct है। If the intensity of faintest audible sound is 2 and of another sound is I, then sound level will be K log I over I naught. Mathematical formula of sound level is SL is equal to log 1 over LO bell. Next है हमारे पास, after how much time the echo must be heard, 0.1 second के बाद। To hear echo, the distance between the observer and the obstacle is 17 meter. Then how much distance will be the sound travel, तो 34 मीटर। दोनों को जमा कर दें 17 को। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एट 1 atmospheric pressure at room temperature is 343 meter per second square, 343 meter per second square. Next है, in a convex mirror
The size of the images depends upon the position of the object. Next है हमारे पास the principal focus of a concave mirror is real. Next है the focal length is related to radius of curvature by the formula f is equal to r over 2. Next है हमारे पास an object is placed 6 cm away in front of a concave mirror that has 10 cm focal length. Determine the location of the image तो -15 cm. Next है हमारे पास Snell's law is stated as sin I over sin R is equal to n2 over n1. Next है mathematical relationship between critical angle C and refractive index n is equal to 1 over sin C. Next है when light passes through a prism it deviates from its original path due to refraction. किसकी वजह से? refraction की वजह से. Next है after refraction from a convex lens, rays of light parallel to the principal axis converge at a point. This point of convex lens is called principal focus. ये इसकी definition. Next है the SI unit of power of a lens diopter. ये papers में आ चुके हैं. If focal length of a lens is 1 meter, then its power will be इसकी power 1 diopter होगी 1 diopter 1D. When the object is placed between 2f of a convex lens, the image formed will be real inverted and the same size as the object. Next है हमारे पास optical fiber work on the principle of total internal reflection. Optical fiber किस principle पे react करता है? Total internal reflection. Next है unlike charges always attract each other. Next है हमारे पास if we double the distance between two charges, what will be the change in the force between them? 1/4. Next, in the presence of a charged body, an insulated conductor develops positive charge at one end and negative charge at other end. This is called electrostatic induction. Next, which device is used to store charge? तो कैपेसिटर यूज होता है चार्ज स्टोर करने के लिए. Electric field lines of force were first introduced by Faraday ने introduce कराई थी. Next है if a charged body is brought nearer a negatively charged electroscope and the leaves of electroscope diverge, then the body is negatively charged. B option correct है. Next है Coulomb's law is mathematically stated. Coulomb's law का क्या है equation? F is equal to Q1 over Q2 over R square. A positive electric charge repels other positive charge. Field around a charge in which that charge exerts a force on a point charge brought in that field is called magnetic field. Next है the SI unit of electric field intensity is Nc-1 Newton Coulomb -1. Next है SI unit of electric potential is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट. नेक्स्ट है मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज C इज इक्वल टू Q और V. ये फार्मूला है कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q और V. इंपॉर्टेंट MCQs है. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर. नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF. EMF का क्या फार्मूला? E इज इक्वल टू W ओवर Q. E इज इक्वल टू W ओवर Q. नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस? कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट है इन मैथमेटिकल फॉर्म ओम्स लॉ इज R इज इक्वल टू और कौन सा होता है? ओम्स लॉ में R होती है रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है विच वायर हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस? वेरी थिन वायर की लोएस्ट रेजिस्टेंस होती है. नेक्स्ट है अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉपर. कंडक्टर कौन? इलेक्ट्रिक करंट का कॉपर है COPPER. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट. What is the voltage across at 6 ohm resistor and 3 ampere current passes through it? तो हमारे पास 18 वोल्ट आएगी. 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वोल्ट आएगी. नेक्स्ट है
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। वी वोल्टेज, I हमारे पास है करंट और R क्या है रेजिस्टेंस। विच वन इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर दोनों क्या हैं, सेफ्टी डिवाइसेस हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का किसने डिस्कवर किया था, एम्पेयर ने डिस्कवर किया था। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर विच फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, तो हमारे पास जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास AC करंट, अल्टरनेटिव करंट जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पोल्स इन अ मैग्नेट, कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट में, तो 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। इन इलेक्ट्रिक मोटर द ब्रशेज आर मेड ऑफ ग्राफाइट, जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं ब्रशेज किससे बने होते हैं, ग्राफाइट से। नेक्स्ट है द ट्रू रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10, इट मीन्स NS इज इक्वल टू 10 NP। नेक्स्ट है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज सर्किट कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज़ यूज टू इंक्रीज डिक्रीज AC वोल्टेज, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए AC वोल्टेज अल्टरनेटिव वोल्टेज को, तो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है द कोयल ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच इज़ कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड अ प्राइमरी कोयल। नेक्स्ट है a transformer has 100 turns in its primary and 500 turns in secondary coil. If 6 volts direct current is applied across its primary, the voltage induced across its secondary coil will be 0 volt, तो क्या होगी 0 volt। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, AC सप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास 73 नहीं पढ़ा जा सकता, 74 है द emission of electrons from the surface of hot metal is called thermionic emission, emission of electrons from the hot surface is called thermionic emission। For the emission of electrons from the tungsten filament, the value of current and voltage are taken as 0.3 ampere and 6 volt। Which device is used to show the change in the value of a current or electric potential as a graph, oscilloscope। Next है those quantities whose values change gradually or stay constant is called analog quantities। वो quantities जिसकी वैल्यू ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता या कांस्टेंट रहती है उनको कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। नेक्स्ट है दोज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज डू नॉट रिमेन कांस्टेंट आर कॉल्ड एज डिजिटल क्वांटिटीज़। ऊपर क्या थी एनालॉग, नीचे हैं डिजिटल जिनकी चेंज होती हैं। द बेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेशंस और 0 और 1 दोनों बेस हैं कंप्यूटर ऑपरेशन की। नेक्स्ट है द डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल क्वांटिटीज़ इनटू एनालॉग क्वांटिटीज़ और कॉल्ड एज डैग। डैग ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल क्वांटिटीज़ को एनालॉग क्वांटिटीज़ में चेंज करती है। नेक्स्ट है इफ़ करंट फ्लोइंग थ्रू स्विच देन द आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड एज 1। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेशन इज, एंड ऑपरेशन की सिंबल क्या है, डॉट। हमारे पास सी ऑप्शन शुरू हो रहा है। Boolean expression for AND operation is x is equal to a dot b। Two switches attached in series work on which operation, AND operation पे work करते हैं। If in computer terminology process data is called, process data को क्या कहते हैं हमारे पास information। Next है short form of information technology is called IT, short form of information technology is called IT। Next है विच इज़ नॉट अ हार्डवेयर डिवाइस, तो हमारे पास जो विंडोज़ है वो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। CPU, कीबोर्ड और माउस क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इट इज़ यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो माइक्रोवेव जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज़ कॉल्ड माइक्रोफोन, जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं उनको हम माइक्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच वेव्स ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
तो लाइट वेव्स की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड और कॉल्ड एज हार्डवेयर। नेक्स्ट है a group of instruction or a program which guides hardware to do work is called software। next है हमारे पास which memory consists of integrated circuits। primary memory consists of integrated circuit, A option correct है। next है which statements of the following false for primary memory, it is built on laser technology, ये false information है। next है हमारे पास द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क की एग्जाम्पल क्या है, फ्लोपी डिस्क, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को क्या कहते हैं, ईमेल। नेक्स्ट है हमारे पास विच पार्टिकल्स और न्यूक्लियॉन्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है द सिंबल ऑफ एटॉमिक मास नंबर इज, एटॉमिक मास नंबर का सिंबल क्या है, ए है हमारे पास। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम इज, ट्रिटियम में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु डिस्कवर द फिनोमिनन ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो हेनरी बेक्रियो ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारे पास which radiations are free of effect of electric and magnetic field, तो gamma radiations हमारे पास दोनों फ्री हैं इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से। नेक्स्ट है radiations present in atmospheres due to the presence of different radioactive elements or background radiations। नेक्स्ट है हमारे पास the symbol of alpha particles is, alpha particles का सिंबल क्या है, 42He helium। नेक्स्ट है हमारे पास the phenomenon in which radiations convert the matter into positive and negative ions is called ionization, जिसमें कैटायन और एनायन बनता है, ionization हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास the half life of radium 226 is 1620 years if n is equal to, if n its total amount, then after 4 half lives its left amount will be 1/60 Newton। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर मोनिटरिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड्स, तो आयोडीन 131 जो होती है वो थायरॉयड ग्लैंड के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच एलिमेंट इज़ यूज टू लोकेट द अल्सर इन ब्रेन, तो फास्फोरस 32 यूज़ होती है अल्सर लोकेट करने के लिए ब्रेन में। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ हैवी न्यूक्लियस आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, तो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट है इफ द मास ऑफ द bob of a pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum motion will be remaining the same। next है हमारे पास which of the following device can be used to produce both a transverse and a longitudinal waves, तो हमारे पास a helical spring। next है हमारे पास waves transfer, wave क्या ट्रांसफर करती हैं, एनर्जी। next है which of the following is a method of energy transfer, तो हमारे पास कंडक्शन, रेडिएशन और वेव मोशन तीनों किसकी है, एग्जांपल एनर्जी ट्रांसफ़र की। नेक्स्ट है हमारे पास द वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सेम स्पीड होती है। नेक्स्ट है अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज produces a 25 complete wave in distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is 60 cms SUP1 greater than SUP। next है which of the following characteristics of a wave is independent of the others, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऐसा करेक्टरिस्टिक है जो कि इंडिपेंडेंट है दूसरे चीज़ों से। नेक्स्ट है the relation between v velocity f frequency and lambda of a wave is v is equal to f lambda, v is equal to f lambda ये आएगा। नेक्स्ट है the disturbance traveling in a medium is called वेव मोशन, जो डिस्टर्बेंस होती है मीडियम में वो वेव मोशन कहलाती है एक। नेक्स्ट है द वेव्स विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ब्रोकन बोन्स, जो कि वेव्स हमारे पास ब्रोकन बोन्स को डिटेक्ट करती हैं, एक्सरेज वो कराती है हमारे पास, एक्सरेज जो होती हैं।
नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास अटैच विद द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमारे पास ये F इज इक्वल टू सब EXT, अब ये आप देख सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है in there is no extension on the spring, then this position is called equilibrium position, A option correct है। next है the unit of spring constant is Nm SUP minus 1 SUP। next है if the distance in spring constant x of a mass m attached with a spring, then restoring force is F is equal to kx। next है the ratio of external force applied on the spring to displacement is called spring constant। next है हमारे पास the time required to complete one round trip vibration about मैना position is called, तो इसको frequency कहते हैं। next है हमारे पास the time period of mass attached with a spring can be calculated by T is equal to 2 pi under root m over k। next है हमारे पास the time period of simple pendulum can be calculated by T is equal to 2 pi under root L over G। next है हमारे पास the maximum displacement from mean position is called, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज कॉल्ड, तो इसका क्या है हुक्स लॉ की डेफिनेशन है। फिर देखें द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज कॉल्ड हुक्स लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास at mean position of a pendulum the potential energy of a pendulum is minimum, mean position पे जो potential energy है pendulum की वो क्या होती है minimum। next है हमारे पास it mean position kinetic energy of the ball is maximum, mean position पे kinetic energy क्या होती है maximum। next है at extreme position potential energy of the pendulum is maximum। next है हमारे पास in simple harmonic motion SHM the acceleration of the body is proportional to the displacement, directly proportional to displacement। next है हमारे पास the value of acceleration is simple harmonic motion at mean position is 0, जो value acceleration की mean position पे होती है simple pendulum की वो क्या होती है 0। next है the waves in which particles of the medium vibrate parallel to the direction of waves are called as longitudinal waves। next है हमारे पास the waves in which particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of waves called transverse waves। ये दोनों definition याद कर लें आप। next है the energy is transferred from one place to another through matter and through wave, दोनों तरीक़ों से energy transfer होती है हमारे पास एक place से दूसरी place तक। next है हमारे पास the wave properties, जो waves की properties हैं reflect भी करती हैं waves, refract भी करती हैं और diffract भी करती हैं, reflection, diffraction and refraction। next है the instrument used to study the properties of waves is called, तो उसको कहते हैं हम ripple tank, जो कि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है हम वेव्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं खसूसियात को, उसको हम रिपल टैंक कहते हैं। The part of waves at which rate particles of the mediums are below the normal positions are called as through trough, उनको हम क्या कहते हैं trough, TROUGH trough। The distance between two consecutive troughs और crust is called, उसको वेव लेंथ कहते हैं। दो consecutive troughs और crust के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है the number of wavelength of waves passing through a point in 1 second is called frequency, जो नंबर ऑफ वेव्स एक ही पॉइंट पर पास हो रही थी हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज, वाइब्रेशन पर साउंड, साइकिल पर साउंड, तो तीनों हैं ए बी और सी तीनों हैं। द स्पीड ऑफ वेव्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय एफ लैम्डा, ये इसका फार्मूला है एफ लैम्डा। 145 MCQ है द वाटर वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द हर्डल विल, वाटर वेव्स हैं अगर हर्डल को स्ट्राइक करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास द मोशन इन विच द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन रिड्यूसेस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डैम्प्ड मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स और कॉल्ड एम्प ऑक्सीलेशन, रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में जो ऑक्सीलेशन होती है सिस्टम को हम कहते हैं आर्म्ड ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वन पार्टिकल, ये हमारे पास डैम्प्ड मोशन की तारीफ है। नेक्स्ट है 149 टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड है वो किसका रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का 1/f।
T is equal to 1 over F. Next है हमारे पास the water waves, thigh water waves obey the laws of all of these: diffraction, reflection or refraction. The time period of frequency and time period is equal to, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1 आता है. नेक्स्ट है हमारे पास it mass bob a simple pendulum is double its period is remains, तो इसका पीरियड क्या होता है remains सेम रहता है. नेक्स्ट है हमारे पास diffraction of waves can be observed clearly only when the size of slit or obstacle is nearly, तो हमारे पास equal to the wavelength of the wave. नेक्स्ट है हमारे पास which is an example of longitudinal wave, तो sound wave एग्जाम्पल है longitudinal wave की. नेक्स्ट है how does sound travel from its source to your ear? by changing in air pressure, जब एयर प्रेशर चेंज होता है तो हमारे पास साउंड पहुंचता है. नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, तो मैकेनिकल जो फॉर्म है एनर्जी को उसको हम क्या कहते हैं साउंड कहते हैं. नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट्स इज इन स्पेस नीड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, क्योंकि साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती स्पेस में. नेक्स्ट है हमारे पास द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, जो लाउडनेस है साउंड की वो क्लोजली रिलेटेड है किससे एम्पलीट्यूड से. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर नॉर्मल पर्सन audible frequency ranges for sound waves lies between 20 Hz to 20 kHz, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. नेक्स्ट है हमारे पास which frequency of sound wave is increased, which of the following decreased, तो हमारे पास 1 और 2. wavelength and period. 161 है हमारे पास the speed of sound waves accurately measured in 1738 है हमारे पास. नेक्स्ट है the speed of sound in air at 21 centigrade is 343 meter second SUP, आगे इसका यूनिट दिया गया है. नेक्स्ट है bats can hear sound frequency up to 12 इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 हर्ट्ज के सुन सकते हैं जो बैट्स हैं फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो WM/SUP -2 SUP, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है. नेक्स्ट है हमारे पास द इंटेंसिटी ऑफ लॉन मूव्स, ये भी हमारे पास ये दिया गया, आप इसको रीड कर लें. नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 सेंटीग्रेड इज 331 ms. नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वाटर एट 25 सेंटीग्रेड इज 1531 ms. नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज एट 25 सेंटीग्रेड इज 5950, ये वैल्यू याद रखिएगा आपके पेपर में आ सकती हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइलेंट विस्टल इज किसकी है 20,000 हर्ट्ज to 25,000 हर्ट्ज. नेक्स्ट है हमारे पास द साउंड लेवल ऑफ रस्टिंग ऑफ लीव्स इज 10 dB. नेक्स्ट है हमारे पास टू हियर इक्वल्स द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड शुड बी 17 मीटर. नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड वेव्स अबव देन 15,000 का 15,000 हर्ट्ज से ऊपर जो ओल्ड पीपल है वो ईयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान. नेक्स्ट है हमारे पास अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्राम द मिरर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, द image produced by mirror is located at the center of the curvature. Next है हमारे पास an object is 40 centimeter in front of a convex mirror, the image is 5.8 centimeter behind the mirror, what is the focal length of the mirror, तो हमारे पास 9.9 centimeter focal length है. नेक्स्ट है हमारे पास the index of refraction depends, जो इंडेक्स है रिफ्रैक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन का इंडेक्स. नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप्स ऑफ इमेज इज़ फॉर्म बाय द कनकेव लेंस ऑन अ स्क्रीन, तो अपराइट और वर्चुअल इमेज बनता है हमारे पास कनकेव लेंस का स्क्रीन पे. नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास रियल इन्वर्टेड और हमारे पास डिमिनिश बनता है. नेक्स्ट है इमेज फॉर्म ऑन अ कैमरा इज, कैमरा पे इमेज कौन सा बनता है रियल इन्वर्टेड एंड डायमेंश्ड. नेक्स्ट है इफ अ रे ऑफ लाइट इज ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल दे विल बी
रिफ्लेक्ट ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास द क्राइटेरिया एंगल ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ वाटर इनटू एयर इज 48.8 degrees. This means that all rays with an angle of incident greater than this angle will be totally reflected. B option correct है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जो डिस्टेंस है स्फेरिकल मिरर का वो क्या होता है? अपर्चर। नेक्स्ट है हमारे पास द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है उसको क्या कहते हैं? पोल। नेक्स्ट है हमारे पास 185 हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड। ये इसका ए ऑप्शन है। ये आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। द पॉइंट थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड। तो हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर के दरमियान होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है द मिरर whose inner surface is reflecting is called concave mirror। वो मिरर जिसकी अन्नर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है उसको concave mirror कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मिरर whose outer surface is reflecting is called। वो मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट करती है उसको कहते हैं concave convex mirror उसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द लाइन which possesses through pole of mirror and center of curvature is called principal axis। principal of axis। नेक्स्ट है हमारे पास the ray of light after reflection from concave mirror is possesses through principal focus। next है spherical mirror are used in। spherical mirror कहाँ इस्तेमाल होते हैं? all of these। मेडिकल में भी इस्तेमाल होते हैं, सर्च लाइट में भी होते हैं और माइक्रोस्कोप में भी spherical mirror इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर इज गिवन बाय। जो मैग्नीफिकेशन है मिरर की वो क्या है हमारे पास? m इज इक्वल टू Q/P। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमारे पास क्या होता है? P डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। नेक्स्ट हमारे पास स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू। स्नेल्स लॉ किसके बराबर है? N इज इक्वल टू साइन एंड आई साइन एंड IT। नेक्स्ट हमारे पास कनकेव मिरर फार्मूला इज गिवन बाय। कनकेव मिरर फार्मूला क्या है? 1/f is equal to 1/p plus 1/q। नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर इज प्लस पॉजिटिव हमारे पास है। नेक्स्ट है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो बाउंसिंग बैक है लाइट का स्ट्राइकिंग के बाद सरफेस है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। वो रेशो इमेज की जो हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इसका उसको हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड। उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है? 42 लेस दैन हमारे पास है SUP। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल अपोजिट टू द बेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड। उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द साइड ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड। उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। वो लाइट रे की जो कि प्रिज्म से स्ट्राइक करती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड। उसको कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल विच प्रिज्म डेविएट्स द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड। उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास टू सी फ्रॉम सबमरीन द शिप एट द सरफेस ऑफ वाटर वो यूज़। तो हम क्या यूज़ करते हैं? पेरिस्कोप। नेक्स्ट है हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म वन एंगल इज ऑफ 90। नेक्स्ट है हमारे पास if in totally reflecting prism one angle is 90 and the other two angles are 45। next है totally reflecting prism is used in prisoners prisoscope and binocular। next है हमारे पास total reflecting prism turns the incident ray at an angle of 90। next है हमारे पास the refractive index of internal coating of optical fiber is 1.53। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स आर। ऑप्टिकल फाइबर का है चीप फ्लेक्सिबल और लाइटर तीनों होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर चीप सस्ते होते हैं, फ्लेक्सिबल और लाइटर। नेक्स्ट है द टू सी स्टोमेच प्रॉब्लम वो यूज़
स्कोप स्टोमेज मैदे की प्रॉब्लम को देखने के लिए हम गैस्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सनलाइट कंसिस्ट ऑफ कलर, सनलाइट के कितने कलर होते हैं? सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। नेक्स्ट है हमारे पास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो है 10,003 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस इज 1/f, पावर ऑफ लेंस क्या है? 1/f। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास अ नॉर्मल आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल आई होती है वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सीन कर लेती है 25 सेंटीमीटर के फासले पर। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 10d, इट्स फोकल लेंथ क्या होगी? 0.1 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्जेस। नेक्स्ट है हमारे पास an object gains excess negative charge after being rubbed against another object which is negatively charged। नेक्स्ट है हमारे पास two uncharged objects A and B are rubbed against each other when object B is placed near a negatively charged object C, the two objects repel each other, which of these statements is true about object become positively charged? B option correct है। नेक्स्ट है हमारे पास when you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the piece of papers are attached towards it. What does this observation indicate? The rod and the paper are oppositely charged। A option correct है। नेक्स्ट है हमारे पास according to Coulomb's law what happens to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increases? तो हमारे पास डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास the Coulomb's law is valid for the charges which are stationary and point charges। नेक्स्ट है हमारे पास a positive and negative charges are initially 4 cm apart. When they are moved closer together so they are now only 1 cm apart, the force between them is 16 times larger than before। नेक्स्ट है हमारे पास 5 joules of work is needed to shift 10 cm of charge from one place to another. The potential difference between the places is 0.5 volt। नेक्स्ट है हमारे पास two charged part spaces are separated by 2 mm. Which of the following would produces the greatest attractive force? +2q and -2q। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q/V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q/V। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइक्रो चार्ज इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है हमारे पास द SI यूनिट ऑफ चार्ज, S यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम्स। 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज 6.65 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18, ये हमारे पास है 1 कूलम चार्ज का। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस देन फोर्स बिकम्स 1/4, तो फोर्स क्या बनेगी? 1/4। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्ज each one C separated by 1 meter is equal to 9 multiplied by 10⁻9। नेक्स्ट है वोल्ट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिस्ट एलेस्ट्रो वोल्टा, ये वोल्ट का नाम किस चीज़ का था? ये फिजिस्ट था हमारे पास एलेसेंड्रो वोल्टा। नेक्स्ट है विच डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी, एलेस्ट्रो वोल्टा ने डेवलप की थी पहली बैटरी एलेस्ट्रो वोल्टा। द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी इज नोन एज वोल्टेक पाइल, पहली जो इलेक्ट्रिकल बैटरी है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेक पाइल। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, जो बिग यूनिट है कैपेसिटेंस का वो क्या है? फैरेड। नेक्स्ट है हमारे पास 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू, 1 नैनो फैरेड किसके बराबर है? 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 के बराबर है 1 नैनो फैरेड। नेक्स्ट है हमारे पास 1 पीको फैरेड इज इक्वल टू, 1 पीको फैरेड किसके बराबर है? तो 10⁻12 के बराबर है 1 पीको फैरेड। नेक्स्ट है हमारे पास SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? NC। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ क्वांटिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वोल्ट। नेक्स्ट है 1 वोल्ट इज इक्वल टू JC पर कूलम, जॉल पर कूलम। 1 वोल्ट किसके बराबर है?
जॉल पर कूलम। नेक्स्ट है एस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यूनिट क्या है फेरेड, क्यू ओवर वी है हमारे पास। उसके बाद है एन इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास what is the voltage across 6 ohm and resistor when 3 ohm and current passes through it, तो 18 वोल्ट आती है। नेक्स्ट है हमारे पास what happens to the intensity of the brightness of the lamps connected in series as more and more lamps are adopted, तो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास what should household appliances be connected in parallel with the voltage sources so to provide each appliances the same value as the power source। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ और द डिफरेंट टर्म्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ दो अलग टर्म्स है। नेक्स्ट है विच वी व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन आर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द करंट, जब हम वोल्टेज को डबल करते हैं तो हम करंट को भी डबल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास if we double both the current and the voltage in a circuit while keeping the resistance constant the power will increase 4 times। next है what is the power rating of a lamp, पावर रेटिंग रैम्प की क्या है 30 वोल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एज 8 ओम देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी 20, ये हमारे पास है आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर किसका यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट है हमारे पास बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू फिक्स्ड एटम, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो फिक्स्ड एटम की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है वोल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ्स इज बिटवीन V एंड I, वोल्टेज एंड करंट, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ, ये दोनों के दरमियान वोल्ट और करंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है द यूनिट इज फार्मूला L इज इक्वल टू L ओवर ओम माइनस एम। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, ये याद रखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ हमारे पास है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट करंट, तो गल्वानोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हाउ गल्वानोमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट टू डिटेक्ट करंट, तो हमारे पास जो गल्वानोमीटर है वो सीरीज सर्किट में कनेक्ट होता है, गल्वानोमीटर सीरीज सर्किट में कनेक्ट होता है इसलिए वो करंट को डिटेक्ट करता है। जॉज लॉ W इज इक्वल टू, तो हमारे पास W इज इक्वल टू आई हमारे पास आता है आई स्क्वायर। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है वाट। नेक्स्ट है द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पावर इज, तो हमारा अल्टरनेटिव करंट पावर क्या है वाट। नेक्स्ट है द अल्टरनेटिव करंट यूज इन आवर हाउसेज हैज़ फ्रीक्वेंसी, जो हमारे घरों में अल्टरनेटिव करंट इस्तेमाल होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, वो 50 साइकिल पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द करंट यूज्ड इन हाउसेज, जो घरों में करंट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट है हमारे पास द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेट, जो करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट AC। नेक्स्ट है द दैट पीरियड इन विच वोल्टेज रिपीट्स इट्स वैल्यू इज इक्वल इंटरवल इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर वो क्या है वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सिल्वर की वो कितनी है 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ ओम मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कॉपर वो कितनी है 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ओम पर मीटर। नेक्स्ट है करंट इज इक्वल टू, करंट किसके बराबर है Q ओवर T, आई इज इक्वल टू Q ओवर T, करंट किसके बराबर है Q ओवर T के बराबर है। नेक्स्ट है एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइज इट्स रेजिस्टेंस, टेम्परेचर जैसे कंडक्टर का राइज होता है इसलिए इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है। नेक्स्ट है व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट पासिंग थ्रू देम इज द सेम, करंट उसमें सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, तो हमारे क्या है स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स, a single magnetic pole does not exist। नेक्स्ट है हमारे पास 289
What is the direction of magnetic field lines inside a bar magnet from south pole to north pole? B इसका सही है. Next है the presence of a magnetic field can be detected by. तो हमारे पास magnetic compass जो है उससे हम magnetic field की presence को detect करते हैं. Next है हमारे पास if the current in a wire which is replaced perpendicular to a magnetic field increases, the force on this wire will also increase. Next है DC direct current motor. DC current motor DC motor converts जो DC मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. नेक्स्ट है व्हेन which part of a DC motor reverses the direction of current through the coil and every half cycle. तो हमारे पास जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो करती है. नेक्स्ट है the direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of ये किसकी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की लिहाज से. नेक्स्ट है the step up transformer increases the input voltage. जो इनपुट वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट है द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 10. ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रांसफार्मर हैज NP 100 and NS 500 if 6 volt direct current is applied across its primary its induced voltages. तो हमारे पास क्या आएगी 30 वो इसकी 0 वोल्ट आएगी. ए ऑप्शन है. नेक्स्ट है आयरन कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर टू एनहेंस द फ्लक्स. आयरन कोर इस्तेमाल होती है ट्रांसफार्मर में जो है हमारे पास एनहेंस करने के लिए फ्लक्स के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड. जो नंबर ऑफ लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड में वो किस पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे. नेक्स्ट है हमारे पास 301 क्वेश्चन है if current is flowing from bottom and to the top in a wire according to right hand rule the direction of the line forces would be anti-clockwise. Next है हमारे पास the lines will be in the form of concentric circle if conductor is अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो तो हमारे पास लाइन जो होंगी वो होगी कंसेंट्रिक सर्कल में. नेक्स्ट है हमारे पास 303 the end of a solenoid from which lines of force energy out is called उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल. नेक्स्ट है the magnetic field of a solenoid resembles with the bar magnet. Next at 305 a current carrying conductor produces a field around it is called as magnetic field. Next according to Fleming left hand rule the direction of magnetic field is indicated by the forefinger. Next हमारे पास forefinger. Next according to Fleming's and left hand rule the direction of force on the conductor is given by thumb. Next है the force on a current carrying conductor is maximum if angle between foils and conductor is 90. Next है हमारे पास in DC motor split rings are made of. DC मोटर में जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो किससे बनी होती हैं वो हमारे पास कॉपर से बनी होती है. DC मोटर में जो स्प्लिट रिंग होती है. नेक्स्ट है हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था हमारे पास वो है माइकल फैराडे ने. नेक्स्ट है व्हेन डिड माइकल फैराडे डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो 1831 को डिस्कवर किया था. 312 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द डायरेक्ट मोटर. डीसी मोटर तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास विच डिवाइस हैज़ 2 कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कॉइल होते हैं एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है. 314 है हमारे पास द वोल्टेज इज डिक्रीज बाय. तो वोल्टेज डिक्रीज कौन करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जबकि वोल्टेज इंक्रीज कौन करता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट है हमारे पास इन AC alternating AC generator flux will be 0 if coil is to the field parallel होगी तब हमारे पास गए. नेक्स्ट है if the change of current is a circuit induces a current is another circuit the known as इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. फिर देखिए if the change of current in a circuit induces a current in another circuit this phenomenon is called mutual induction. Next है the shape of magnetic lines of force in case of a straight current carrying conductor is हमारे पास है सर्कुलर होती है. नेक्स्ट है when a current carrying conductor is placed in a magnetic field at a right angle to it the direction of the force acting upon it is at right angle to both of the field of the circuit both the field and the current. Next है
द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज, उसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम अ हॉट सरफेस, हॉट कैथोड सरफेस, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द दिस गेट इज, तो हमारे पास नैंड गेट है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड गेट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग टू नॉर गेट्स। एंड गेट किस तरह बनता है, दो नॉर गेट को स्मार्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नॉर गेट इज वन व्हेन both a and b are 0. Next है हमारे पास if x is equal to a b then x is 1, then a and b are 1. Next है हमारे पास the output of a NAND gate is when both of its inputs are 1. Next है हमारे पास electronics is a branch of, electronics किसी branch है applied physics की। Next है 328 electronics is the study of principles by means of which we control the flow of electrons. Next है the quantities whose values remain constant or vary continuously are called as analogous quantities. Next है 330 analogous quantity is all of these, हमारे पास time भी है, pressure भी और distance भी। Next है public addresses system is the example of analogous electronics. Next है the digits used in electronics are 0 and 1. Next है digital technology is used in radar. Next है the converter of analog is to digital signal is ADC. Next है the converter of digital analogous signal is हमारे पास DAG है, DAG है। Next है 336 the closed switch in Boolean expression is represented by 1. Next है हमारे पास the open switch Boolean expression is represented by 1. 0 is represented by 0. Next है if A input is 1 and B is 0 then in and operation output will be 0. Next है हमारे पास the output of OR gate would be 0 when both of its inputs are 0. Next है the output of an AND gate is only 1 when both of its inputs are 1. Next है हमारे पास the two inputs of a NAND gate are A and B, its output would be 0 then A is equal to 1 and B is equal to 1. Next है 342 A and B are two inputs of a NOR gate, its output would be 1 when A is equal to 0 and B is equal to 0. Next है हमारे पास in computer terminology information means processed data. Next है हमारे पास which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and earth, हमारे पास है radio waves, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास the basic operation performed by computers are both A and B, both A and C, arithmetic operation and logical operation, arithmetic और logical operation। नेक्स्ट है the brain of any computer is called CPU। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following is not a processing, तो हमारे पास गैदरिंग क्या है, वो प्रोसेसिंग नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, इंटरनेट। नेक्स्ट है विच व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। 350 क्वेश्चन है रेडियो वेव्स और रेडियो वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बी करेक्ट है। द डेटा स्टोर्ड इन CD इज 680 MB, जो डेटा स्टोर होता है CD में 680 MB होता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ, हार्ड डिस्क किससे बनी होती है, एलुमिनियम से, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास CD विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटीरियल इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्या है अ डिवाइस विच हैज़ टू वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट है 355 एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज, एग्जांपल इनपुट डिवाइस की कौन सी है हमारे पास, कीबोर्ड, प्रिंटर और मीटर और रैम आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है डेटा स्टोरेज डिवाइस इज क्या है, हार्ड डिस्क हमारे पास डेटा स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फिटेड इन टेलीफोन रिसीवर, तो हमारे पास बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फ्रॉम, दोनों फ़ोन में हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंपोनेंट इज आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, तो मॉनिटर आउटपुट है। नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, तो हमारे पास रेडियो। ये हमारे पास अभी इसके 20 पेज दिए हैं, ये देखिए ऊपर से अभी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारे पास 1000 से ऊपर क्वेश्चन हैं। ये फ़ाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप वो ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से हमारे ये व्हाट्सएप आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये प्रिपरेशन मटीरियल मिल जाएगा, तमाम मुख्तलिफ और भी फाइल्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा जिस दोस्तों ने आखिर तक वीडियो देखी है वो कमेंट्स में बताएं कि हमने पूरी वीडियो ये देखी है, 50 मिनट से प्लस की वीडियो देखी है। इंशाल्लाह उसको हम एक हार्ट और रिप्लाई देंगे। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।